Ladies and gentlemen, put your hands together for Sri Gaur Gopal Das ji. Welcome him on stage, and quite aptly, our wellness partner for this session is Monkify, and we thank them for their support. Welcome, sir. A louder round of applause, please. Thank you very much. Thank you. A very good morning to you, ladies and gentlemen. Or doesn't look like you're very happy seeing me, guys. A very good morning to you, ladies and gentlemen. We can do better. It's the first session of the day, guys. A very good morning to you, ladies and gentlemen. Oh, wow. I love that. Now it feels so much better. It's a great privilege and pleasure to be here this morning for the Ideas of India Conclave organized by ABP News. And my sincere gratitude to ABP News for giving me the opportunity to be here this morning. I remember the last time I came here as well. It was a very enriching and a wonderful interactive experience, and I hope that we have a similar experience today. Can I come down if it's okay? Yeah. That's a very boring place. Stages are boring, you know. It's like success. The higher up you go, you get lonelier. And when you get lonelier there, you need to come to real life to interact with people. And which is why it's great to come down into real life and not be the successful, lonely guy up there. And also from up there, it's a lecture. From here, it's a conversation, interaction. And I think whether it's leadership, parenting, or real life, conversations are more important than lectures. If you're going to lecture to a spouse, forget it. If you're going to lecture to a child, forget it. If you're going to lecture to a subordinate, forget it. You're going to have a conversation with a spouse, conversation with a child, conversation with someone whom you lead, brilliant. And that's why we all need to come down from the stage. The more we are in our own silos and our own shells, we lose touch with reality. We lose touch with ground realities and humanity. Which is why stage se utarna बहुत ज़्यादा ज़रूरी है conversations के लिए. Having said that, the topic I've been given this morning is mastering the mind, living our best lives. Let me kick this morning off with a very interesting real life story that happened with me. I was taking an early morning 2:30 a.m. British Airways flight to go to London, to reach London Heathrow for about 3 weeks of my lecturing tour. And as I came on board the flight, you know, most stewards and stewardesses have become like my family now. Because I fly so much, 2018 I took 250 flights that year. Right. That was like mad, insanity, you know. So they became like family now. So I come on board the flight and the stewardess says to me, "Welcome on board, sir, we guarantee takeoff." I said, "Landing, madam?" She said, "We have a monk with you. If something goes wrong, you can pray that things get right." I said, "Look, madam, I can't put the landing in place, but I can definitely tell you something. After having flown so much, if you're tired, you can take a break, and I can make your safety announcements. Because I've memorized them now. If there be a lack of oxygen supply, oxygen mask will come from the panel above your head. Pull the mask sharply to activate the flow of oxygen. Secure your mask on your face and nose and breathe normally. Make sure your mask is securely fastened before you help children, infants, or others." We joked and we had a hearty laugh. The flight was fantastic. I landed in London at London Heathrow, and goodness me, there was a huge long queue of people standing there. And because it was Terminal 5, we were all standing in this long queue. I'd finished my morning meditation, my morning prayers. Now I had my headphones on, I was listening to something. And right in front of me, just a couple of passengers ahead, was a Jewish family. The man was dressed in a white shirt and a long black coat, a black hat, and he had these curly swirls coming down his cheeks. His wife was dressed in a white shirt and a pink skirt with a blue t-shirt, blue sweater on, and they had 4 kids, all boys. Goodness me, all boys. Can you imagine managing that masculine energy? One man once told me, "I had 6 philosophies how to raise children. Now I have 6 children and no philosophy left." You know, how do you manage that many, right? So 4 children, 2 were in a double stroller pram, the man was holding, the father,
and two were with the mom, one on the left and one on the right. And I was observing this beautiful, traditionally dressed Jewish family. All the kids were dressed like the dad too. And suddenly, just in about 5 minutes, the lady looked at her husband and started shouting, screaming, Joshua! Joshua! Where's Joshua? Joshua is missing! The man looked at her, and I now, because she was screaming, everybody's looking at the drama. This is the airport, immigration, morning. And I realized one of the boys must have slipped away, and that was the case. Two were in the stroller, the mom only had one, the other boy had slipped away. His name was Joshua. And the mother started screaming, where's Joshua? Get my Joshua back! Screaming, crying now. And then the man and the woman, they went outside the immigration queue to check where Joshua was. They dropped down a few queue managers while they were going there. And the lady saw Joshua was running out there. She started chasing him. The man stood taking care of the other three. She started chasing him. Joshua, wait, Joshua! और जितना Joshua को wait बोल रही थी, उतना उसको जोश आ रहा था भागने में. Joshua, wait, Josh, running, running, running. Finally, the mother came to Joshua, and you know how little kids can be. He's probably 4 or 5 years old. He just laid down there looking at her, smiling. She tried to hold his hand and pull him up. He wouldn't. Then she knelt down on her knees and whispered something very assertive and strong in his ears, I guessed, because he started crying. And suddenly he stood up. The mother held Joshua's hand firmly and brought him back to the queue with the rest of the family. How many of you have kids, guys? Lovely. How many of you know that when kids are younger, they are super hard to manage, guys? Lovely. How many of you know that when kids get much older, like 16, 17, Gen Z, Gen Y, they're harder to manage than those tiny toddlers, guys? Thank you very much. I love that answer. Everybody's hands are up. Everybody's raising their hands. Oh my goodness me. Children are pretty. They're cute. But they have a serious sense of restless, humongous amount of energy, guys. Restless energy. Sometimes when I go to people's home and I play with their kids a little bit and I say, how lovely your kids are. You're so blessed to have these kids. They say, spend the night and then you will realize how blessed we are. I told one of my friends, he has 3 little daughters. I said, तेरे घर में 3 लक्ष्मियाँ हैं भाई. 3 लक्ष्मियाँ. बोला कभी घर आना. उधर 3 दुर्गा होती है त्रिशूल लेके जब झगड़ा करती है तभी. Oh my goodness me, I'm telling you, there's tremendous energy that kids have. But you know something? Mom and dad can put Joshua to sleep. There's a Joshua right inside here who's on 24/7. Your mind. A Joshua who doesn't go to sleep. A Joshua who is on 24/7, 365 days a year for the bloody rest of your life. Do you know how active your mind is, guys? Have you ever tried to stop Joshua? Have you ever tried to regulate Joshua? Have you ever tried to hold your Joshua's hand and bring it back? You're experiencing a Joshua right now. As you're listening to me, your Joshua has already slipped away thinking of something else. What's the next session? Instant. Right now, your Joshua is in action right now. How many of you have been at work and thought about what your wife, your husband said that morning? Thank you. How many of you have gone home and thought about that toxic boss at office? The front is all ABP. They are all ABP. Nobody's raising their hands. Because all the bosses and colleagues are sitting together. अभी कैसा हाथ उठा है टॉक्सिक यही सब तो साथ में बैठे हैं इधर. I must tell you, the mind is a very difficult entity to manage. It just doesn't go to sleep. You can put a kid to sleep.
You can't put your mind to sleep, and because you can't put your mind to sleep is why lots of people in the corporate world today can't sleep. They have insomnia, they have sleeping disorders, they have anxiety issues, they get panic attacks, they are stressed, they feel lonely amidst a crowd, they're feeling lonely when they're with people, they feel absolutely lost, stressed, depressed, yet well dressed. Corporate professionals today. You know, corporate professionals today. Can you believe this? We are living with a Joshua who just doesn't sleep and who causes sleeping issues. Sleeping pills stop working at a time. And which is why I believe this topic, mastering the mind, living our best lives, is so crucial and critical to discuss, because you can go to a physical gym to build muscle and lose some flab. The country and the world doesn't have a mental gym to go and do a mental workout which can help you build your mental muscles and make them strong, active, without having them go in a state of hibernation. Right? And that's precisely why I'm here today, to talk about that mind, that Joshua, running 24/7, creating fears, imaginary pleasures, anxieties, deadlines, worries, picking faults in the person next to you, non-stop. Guys, every machine that's on all the time needs some rest. Like your bodies need rest, imagine your mind. How many of you in the last, I'm not even saying your life, 1 year, have prioritized mental rest? How many of you have put your mind to sleep? You have put your bodies to sleep, which is hard by itself in this world. How many of you have prioritized putting your mind to sleep, that your mind is so rested that when you wake up, you're like a fresh cherry blossom, ready for the day? When I wake up, I'm half drained from yesterday's stress, yesterday's fatigue. All my smart devices only show me not slept enough, stressed, stress high, relax, breathe, and I'm still high. Just going on. Guys, one of the critical needs for today is mental rest. We're talking about mental health problems, bloody nobody's talking about mental rest. Having a healthy mind is about allowing the mind to rest, to reboot, to recuperate, to replenish itself with all the reserves and strength and energy that it needs to continue in the next day and for the future. So you need to have a mom who will know how to deal with Joshuas. Did you know that even if you're not married, you are a parent to Joshua here? Whether you have a child or not, you're dealing with a child non-stop. Here are my 4 ways that I look at it in dealing with Joshua's inside, guys. 4 things that I'd like to suggest, if you might allow me to get some kind of a mental break. And these are 4 N's. Good, easy to remember. The first N is neglect your mind. You know, sometimes when you're dealing with a child, when you're dealing with a kid, the kid is always seeking attention. आप में से कितने लोगों के बच्चों को कभी थोड़ा लगा है, कभी गिरते हैं लगा है? आप में से कितने लोगों के बच्चे रोए हैं? और आप में से कितने लोगों के आपको याद है कि अगर आप उसको जाके थोड़ा छुएंगे तो और जोर से रोए? आप में से कितने लोगों को याद है लगा इतना सा था, उसके लिए पहले तो रोने की जरूरत नहीं है, और फिर हाथ लगाओ तो starts crying like mad, you know, because the child is not so pained by the wound. The child is simply seeking attention of the parent. Your mind is constantly asking for your attention. You're working,
Your mind is asking for your attention. Look at this notification here on the phone. You're talking to a colleague, the mind is looking for attention. Hey, beautiful girl in my office. It's okay. Wife's not here. One glance doesn't that, it's not all that bad. Attention. And the more attention you give to the child, बच्चा रोना बंद करता है. भाई साहब, बच्चों को अगर आप ध्यान दो, रो रहा है, तो रोना बंद नहीं करता. वो ज्यादा जोर से रोने लगता है. If you give too much attention to your mind, the mind is not stopping its games, the mind is going to increase the games with enhanced fervor. और इसीलिए बच्चों के टैंट्रम्स को जैसे निग्लेक्ट किया जाता है, वैसे ही माइंड की कई चीजों को निग्लेक्ट करना जरूरी है. कैसे निग्लेक्ट करोगे? भाई साहब, बोलना बहुत इजी है या करना नहीं होता. टू टेक योर माइंड इंस्टेंटली टू समथिंग एल्स. When your mind is taking away, do something engaging, do something entertaining, do something enlivening. उसको निकालना पड़ेगा. बच्चों के रोने वाली एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज करना पड़ेगा. माइंड को भी वैसे करना पड़ता है. But there are going to be certain aspects of the children. You can't neglect them. If your child is playing with a matchbox, will you neglect? No. If your child is going and putting the hand in fire, will you neglect? No. Which is why, with your mind, maturity is to know what to attend to and what to neglect. There are some aspects that you will need to give attention to, but there are some aspects that you will need to ignore. Guys, mental rest will come when you start ignoring and neglecting things that don't deserve priority and attention. The second N is negotiate. How many of you ever said to your kids, तू बस ये एग्जाम पास कर दे अच्छे नंबर से, तुझे वीडियो गेम दिला देंगे या आईफोन 16 दिला देंगे? Have you ever negotiated? बस you just eat your veggies now, the weekend will give you a slice of pizza. Negotiated? Okay, you just make sure you do your homework properly and behave well, you will get 30 minutes extra screen time today. नेगोशिएशन. आजकल उल्टा हो गया है, बच्चे नेगोशिएट करते माँ बाप से. एक छोटी 4 साल की बच्ची गई दुकानदार के पास और बोलती है दुकानदार से, अंकल अंकल मैं कैसी लगती हूं? दुकान वाले, बड़ी प्यारी लगती हो बेटिया. तो बोले, अंकल फिर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मेरी शादी अपने आपके बेटे से करेंगे? तो जरूर करेंगे बेटिया. तो अंकल फिर आपके होने वाली बहू को एक फ्री 5 स्टार चॉकलेट नहीं देंगे अंकल? अभी उल्टा नेगोशिएशन चल रहा है. But we all have that experience of negotiating so that our children can pay attention to the what is important and what is of value, and then they get some indulgence in what they love to do as well. Do exactly the same with your mind. How many of you do some workouts, guys? Go to the gym, do some yoga, do some Zumba. How many of you practice a diet, guys? Okay, some of you, अरे बाप रे, हाथ एक्सरसाइज कर रहे, डाइट कोई नहीं पल रहा है इधर, हाथ ही उठा नहीं किसी का. How many of you know that those who are into nutrition and fitness, there's something called as a cheat day, guys? है ना, cheat day. 6 days. What are we negotiating? You're negotiating with your mind. 6 days, nothing. 7th day, Sunday, blueberry cheesecake, one piece. 6 days, nothing. 7th day, big full-on Punjabi thali with paneer makhan wala. What's it called? Negotiation. 6 days you be disciplined. 7th day I give you a cheat day. The only problem with the mind is cheat day can become a cheat week because the mind is very, very tricky. Negotiate and observe. The third N that I want to talk about is note it down. There's so many ideas, so much stuff going in the mind, guys. Bring it out. Bring it out. Journaling is powerful. Write, write, write. सोने से पहले लिखो, नहीं तो माइंड में लेके सो रहे हो. सोने से पहले लिखना सीखो. Start journaling before you go to bed because you're emptying that energy. You're bringing that energy out.
Sometimes good ideas will be seen, sometimes stressors will be seen. You will observe patterns that stop you from taking mental rest. Note it down, the third N. And last but not the least, because we have Mr. Tripathi, who's been saying bus. Sawal bhi puchne hain. That's why I must come to the end of what I'm saying. I can keep going. The last one is, N is called non-judgmental observation. How many of you live in a house, guys? Sorry for that rhetorical question. How many of you know that there are birds flying above your house, guys? Thank you. How many of you counted the birds flying above your head today? None. How many of you counted there were 5 parrots, 6 pigeons, 3 crows that flew above my roof today? No, right? If that bird comes and makes a nest in your house, will you take note, guys? Absolutely. There are birds going above your roof and they come and they go and they come and they go and they come and they go. And what do? Non-judgmental observation. आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई जजमेंट नहीं कि ये अच्छा बर्ड है ये बुरा बर्ड है, बस देख रहे आ रहे गा रहे आ रहे जा रहे. मैं अपने घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, पंछी आ रहे जा रहे. But if a bird does come in your home and make a nest, you will surely take note that that bird is in here. Guys, overthinking, mental chatter. You're talking too much to yourself. All day, you're not talking to anybody as much as you're talking to your own self in your mind all day. Joshua is on all day. Which is exactly why that mental chatter needs to stop for mental rest. How would you stop it? You'll stop it by creating a distance between you and your thoughts and your feelings like the birds. Thoughts will come, feelings will come, आएंगे जाएंगे. अगर वो अंदर आके 10 दिन 12 दिन 1 महीना 1 साल नहीं जा रहा है, go to a therapist, a psychiatrist, a psychologist, counselor, mentor. Because if the bird is making a nest, you might need help. But this everyday stuff, you know what you need to do? If you're just lying down and too many thoughts in your mind and feelings about this deadline the next week, just start classification. This is a feeling only. It's not me. Mera feeling hai. This is just a thought. Oh, I'm stressed. Oh, this is making me stressed. Thought, feeling, thought, feeling. Classify. As soon as you start classifying thought, feeling, you start feeling away from your thoughts and feelings. And the farther away you go from thoughts and feelings, you stop engaging with them. Slowly and steadily your mind comes into a state of mental rest and you're able to relax and calm down. So guys, Joshua is your own child. Be gentle. Rather than saying mastering the mind, I would have called this session befriending the mind. Befriend your mind. It's your own. Be gentle, be kind, be loving, be reassuring to your Joshua, so that Joshua can rest for a while and your mental health and mental well-being can be enhanced. Repeating the 4 N's. N number 1, neglect. N number 2, negotiate. N number 3, note it down. And N number 4, non-observational judgment. I wish to thank you all very much as I go up on stage. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. और जिस अंदाज में आपने अपनी बात कही, लेकिन एक और अंदाज है जो अभी बाकी है गौर गोपाल दास का, और वो है कि आप सिंगर भी हैं. आप बहुत सारी शेर व शायरी करते हैं. युवाओं को आप उनकी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, तो बुजुर्गों को आप अपनी कहानी से प्रेरित करते हैं. तो मैं चाहूंगी, एक रंग तो हम सब ने यहां पर आपका देख लिया है, लेकिन चूंकि हम मुंबई में हैं, आप यहीं महाराष्ट्र में पैदा हुए, तो वो जो जोश गाने के जरिए आप लेकर आते हैं, मैं चाहूंगी कि उससे इंटरव्यू का आगाज हो. गाकर? हाँ, गाकर सुनाना होगा आपको. ओके ओके ओके. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं माना जिंदा हूँ मैं तो अभी. कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में, ये लम्हा कहाँ था मेरा,
अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। क्या बात है, बहुत मेरी सुंदर। आवाज, आई एम कॉफिंग a lot. My voice has gone for a toss, but I always say with this song, this is the moment. And that's what the mind is stopping us from doing. Living in the moment. ये लम्हा यहाँ है और इस लम्हे में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस लम्हे में सफलता का मतलब क्या होता है? अगर आपके भाषा में, शब्दों में मैं समझने की कोशिश करूं, देखिए बहुत सारे लोग हैं, हमने यहाँ पर बता दिया कि सफलता ये है, मेंटल पीस के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सफलता के पीछे भागने वाले लोग भी बहुत हैं। जी। तो कहां पर जाकर हम ठहरें और आपकी नज़र में सफलता के मतलब और मायने कैसे समझे जाए? जी, आज की तारीख में इन द मॉडर्न वर्ल्ड टुडे व्हाट हैज हैपेंड इज, हम ना हैविंग मोर को सफलता मानते हैं। हैविंग मोर इज कंसिडर्ड सक्सेस, बट व्हाइल हैविंग मोर पीपल हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ फीलिंग मोर। इमेजिन पीपल हु हैव अ लॉट बट फील एम्प्टी, वुड यू कॉल देम अ सक्सेस? सब कुछ है, शांति नहीं है, सब कुछ है, प्रेम नहीं है, सब कुछ है, पर्पस नहीं है, सब कुछ है, सो नहीं पा रहे हैं, सब कुछ है, माइंड बस रेस्ट नहीं कर पा रहा। क्या ऐसे इंडिविजुअल को हम सक्सेसफुल कहेंगे? सो व्हाट हैज हैपेंड इज, हैविंग मोर हैज बिकम सच एन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दैट फीलिंग मोर हैज गॉन टू द बैकग्राउंड। नाउ इमेजिन समबडी हु कैन फील अ लॉट, शांति है, प्यार है, पर्पस है, रिसोर्सेज नहीं है, हैविंग मोर नहीं है, रियल लाइफ में जीना है। केवल फीलिंग से तो दुनिया नहीं चलती, केवल फीलिंग से तो पेट नहीं भरता। कहेंगे हमारा परिवार एक दूसरे को बहुत प्यार करता है, बच्चे की स्कूल की एडमिशन की फीस नहीं है। सो सक्सेस इज अ बैलेंस ऑफ हैविंग मोर एंड फीलिंग मोर। द प्रॉब्लम इज द नैरेटिव दैट हैविंग मोर इज सक्सेस is stopping us from living a life where we can feel more. I feel सक्सेस की डेफिनेशन में ये ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नैरेटिव बदलना बहुत जरूरी है, जहां हैविंग से फीलिंग भी आए और हम कोई एक्सट्रीमिटी की लाइफ नहीं जी रहे केवल हैविंग या फीलिंग वाली। दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। एक शेर पढ़ा था मैंने, बहुत बढ़िया शेर, जिसमें कहा था कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए, हम ठहर गए। तो कुछ लोगों को कामयाबी में सुकून नजर आ रहा है, कुछ लोगों को सुकून में कामयाबी नजर आ रही है, लेकिन जिनको कामयाबी में सुकून नजर आ रहा है उनको मन का सुकून नहीं है, और जिनको सुकून में कामयाबी नजर आ रही है उनको तो रियल वर्ल्ड में जीना है। तो मुझे लगता है कि दोनों एक्सट्रीमिज्म है, इसका बैलेंस होना जरूरी है। कामयाबी वाला सुकून भी चाहिए और सुकून वाली कामयाबी चाहिए। दैट इज अ बैलेंस ऑफ हैविंग मोर एंड फीलिंग मोर। हम तय कैसे करेंगे कि किन चीजों में? देखिए आज की तारीख में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तय कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि सुकून उनके लिए कहां पर है और कामयाबी कहां पर है, तो वो तय कैसे करें? जी जी, सुकून की जब बात करते हैं हम, मेरे हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन निकलेगा उसका पूरी दुनिया भर में, कि आप एक बिजी दिन के बाद अगर आप घर लौट के आए तो कोई हो जो आपको समझ पाए। हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट सुकून व्हेन यू हैव समबडी हु कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील? ऑल ऑफ अस, राइट? कोई हो जो मुझे समझ पाए, जो मुझे प्यार करे, जो जिनके साथ में अपनी दिल की बात खुल के बात कर पाऊं, ये सुकून है। How many of you feel that you come back home and you have a meal that is cooked at home and not just ordered on a e-commerce platform to get your food delivered is sukoon? How many of you realize homemade food is sukoon? हम लोग ना अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉफी पीते पीते और सैंडविचेस खाते खाते भूल गए कि दाल चावल का कंफर्ट कितना है। बिल्कुल, वो एक सुकून है। आप जब घर लौट के आए और आप रेस्ट करे तो आप अगर सो पाए बिना स्ट्रेस के, स्ट्रेस तो सबको होता है, एंग्जाइटी तो सबको है, वरी तो सबको है, पैनिक तो सबको होता है, डेडलाइंस है सबकी ना, वर्ड ही देखिए ना, डेडलाइन। हमने कभी कहा है मेरे लिए एक लाइफ लाइन मीट करनी है मुझे? हम कहते करनी, क्योंकि लाइन क्रॉस करते करते क्या होता है पता है?
डेडलाइन, इसीलिए तो डेडलाइन कहते हैं उसको. वी आर डेड बाय द टाइम वी क्रॉस दैट लाइन, राइट? Oh, thank you. I know people are relating to that a lot. तो इसमें सुकून यह है कि सो पाना, यही तो बात कर रहे थे हम. जर्नलिंग करें, लिखें अपने दिल की बात. जितना आप लिखोगे, जितना आप डिटॉक्स करोगे अपने मन को, उतना आपका मन शांत होकर रेस्ट कर पाएगा. क्या ये सुकून नहीं है मैडम? क्या ये सक्सेस नहीं है कि मेरे लिए घर का बना खाना है, केवल सैंडविच, कॉफी और जोमेटो स्विगी से ऑर्डर किया हुआ खाना नहीं है? क्या ये सुकून नहीं है मैडम कि मेरे पास कोई हो, मेरा पार्टनर, मेरा स्पाउस, मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स, जिनसे मैं अपने दिल की बात खुल के कर पाऊं? क्या ये सुकून नहीं है मैडम? और सक्सेस नहीं है कि मैं आके घर लौट के आऊं तो मेंटल डिटॉक्स करके सो पाऊं? क्या ये सुकून नहीं है मैडम कि जब मैं उठूं कल सवेरे तो उत्साह से उठूं, प्रेरणा के साथ उठूं? I look forward to work. I look forward to the day. I have the zeal. I have the purpose to go and contribute something to my work, to my nation, to my society and to the world at large. ये सुकून है. पर्पस एक सुकून है. नहीं तो उठे और गए. आज का एक और दिन, आज का एक और काम, आज का एक और टिक. हम लोग ना बस बकेट लिस्ट में टिक करने में लगे हुए. टुडे सिविलाइजेशन है टिक 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 सिविलाइजेशन. सुकून टिक में कहां से आएगा? सुकून तो प्रेरणा में आएगा, उत्साह में आएगा, एक जुनून में आएगा, एक जज्बे में आएगा कि मैं एंथुसियाज्म से जाके वो काम कर रहा हूं. ये सुकून होता है. पर्पस सुकून होता है, जज्बा सुकून होता है, रिश्ते सुकून होते हैं, नींद सुकून होती है, घर का खाना सुकून होता है. ये सब जिसके पास है ना, वो कामयाब है. और कैसे हम लोग इसको प्रायोरिटाइज करेंगे? हर चीज आइडियली तो कुछ नहीं होती. छोटी छोटी स्टेप्स. द जर्नी ऑफ 1,000 miles begins with the first step. छोटी छोटी चीजें. वी आर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स. वी आर नॉट गोइंग टू गेट होम कुक्ड फूड मील्स एवरी डे. कैन आई गेट इट ट्वाइस अ वीक, once a week? I may not have the time enough because I'm working 18 hours, 16 hours a day to go and sit with my spouse or my child or my parent to talk with them. Can I talk to them once a week? Can I message them out when I'm just out of the meeting? Love you, how are you? हम लोग ना भूल गए कि सुकून के लिए क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, क्वालिटी की जरूरत होती है. आपका सुकून किसमें है? मेरा सुकून है लोगों की सेवा करने में. मेरा सुकून है मेरे दोस्तों के साथ समय बिताने में. मेरा सुकून है मेरी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साधना करने में. और मेरा सुकून है शांति से सोने में, ये सोचकर कि मैं जो कह रहा हूं वो सुनने से एक भी इंसान अगर सुकून से सो पाए तो मैं सुकून से सो पाऊं. लेकिन उसी सुकून की तलाश में एक वक्त जब आपने संत बनने का फैसला किया, आपके परिवार के लोगों ने बहुत विरोध किया था, वो नाराज भी हुए थे. और यहाँ पर जोशुआ का आप जिक्र कर रहे थे तो मुझे आपकी वो इमोशनल स्टोरी भी याद आ रही थी जब बहुत लंबे समय तक आपने अपने पिता से बातचीत नहीं की जी. तो यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग हैं. यकीनन जब हम बहुत अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, परिवार को कम वक्त दे पाते हैं, या बहुत सारी बातें होती हैं जो माँ बाप को लेकर हम कहना तो चाहते हैं लेकिन बहुत देर लग जाती है जी. जो आपकी जिंदगी से हम सीख सकते हैं, उसके बारे में कैसे बताएंगे आप? हाँ, वो पूरी कहानी. वो पूरी कहानी मैंने कई बार ये कहानी बताई. आप पूछ रहे हैं इसलिए दोबारा दोहरा रहा हूं. लोगों ने ये कहानी बहुत बार सुनी है, लेकिन भावुक कहानी है बहुत. कि मैं अपने पिताजी से 2 साल तक बात नहीं कर रहा था क्योंकि हमारे कुछ मतभेद थे. वी हैड सम डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और सर्टन थिंग्स. एंड देन ही केम टू मी वन डे एंड ही 2 years later he fell down on my feet and मेरे पैरों पे सर रख के कहने लगे कि बेटा मेरे से बात करो. तो मैं नहीं करना चाह रहा था तब भी. तब मेरी माँ ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं करते, पापा है आपके. सो देन आई स्पोक टू हिम फॉर few things. क्यों बात नहीं करना चाहते थे आप? क्योंकि देखिए, he was a chain smoker and that was ruining his health. हमारे सबका मतभेद उसमें था. मैं उनके स्मोकिंग या नॉट स्मोकिंग के बारे में नहीं कह रहा था, उनकी हेल्थ. somebody is smoking 30+ cigarettes a day, it's ruining their lungs. तो बोल के सब कुछ करके देखा नहीं हो रहा था, तो ये एक पैतरा था. one more way to see if it works. तो फिर माँ ने कहा, तो फिर बातें शुरू की और 1-2 हफ्ते में आश्रम गए, ज्वाइन कर लिया हमने यहाँ के बंबई में. और हर साल जाता था और सोचता था कि उनको कहूंगा सॉरी डैड, लेकिन नहीं कह पाया. ईगो कई बार हमको रोक देता है बोलने से. अहंकार ना बहुत बुरी चीज है, बोलने नहीं देता, सॉरी नहीं बोलने देता.
हमेशा आपको ये दर्शाता है कि आप सही है। और फिर एक दिन सवेरे मेरी माँ का फोन आया, रो रही थी, तो पता लगा कि पिताजी चल बसे। तो फिर गया मैं वहाँ, उनका पार्थिव देह वहाँ पड़ा था, तो उनके चरणों में सर लगाया और कुछ आंसू बहाए और उनको कहा, आई एम वेरी सॉरी डैड, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए जी, जिंदगी हमको वो मौका हमेशा देती नहीं है। वो तो चले गए। मैं आत्मा में विश्वास करता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि उनकी आत्मा ने कहाँ मेरी वो रिपेंटेंस, मेरा वो पश्चाताप सुन लिया होगा। लेकिन क्यों पश्चाताप करना जो आज आप वो कह पाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय हम्बल अपील टू ऑल ऑफ यू, ओवर एवरीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू, पीपल आर ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू, पीपल हु मैटर टू यू। और उसमें कुछ थोड़ी अनबन रहे, कुछ यहां वहां चले, सबका चलता है कुछ ना कुछ। It's always good to let go. Of course, not let go in a toxic way that you become a doormat all the time. वो भी बुरा है कि लोग आपको यूज करते रहे, वो भी बुरा है। लेकिन जितना हो सके लेट गो करे और अपने रिश्तों को, लोगों को जो वैल्यू करता है उसको प्रायोरिटी दे। जब रिश्तों की बात आती है तो फिर आप लव गुरु भी बन जाते हैं। समटाइम्स आप यूथ को बहुत सलाह देते हैं, तो ये अनुभव कहाँ से आया और लव गुरु बन के आप क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि एक संत जब सिखाता है कि प्यार कैसे करते हैं तो बड़े सारे सवाल आपको कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, कैसे हैंडल करते हैं आप? जी, क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करता हूं कि अच्छा, दो सवाल पूछ रही हैं आप। अच्छा, दो चीजें पूछ रही हैं मैडम त्रिपाठी जी, बहुत सवाल पूछ रही है आज हमको। तो पहला कि अनुभव कहां से आया। जी, सबसे पहला, आश्रम में रहते हैं तो 80 लोगों के साथ रहते हैं तो 80 ईगोज के साथ रहते हैं। उसमें केवल एक फेमिनाइन डायमेंशन नहीं है, लेकिन पुरुषों में भी कुछ पुरुष होते हैं जिनकी फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग होती है। मैं ना पुरुष और स्त्री को जेंडर से नहीं देखता जी, मैं पुरुष और स्त्री को एनर्जी से देखता हूं। दोनों में दोनों है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। कुछ महिलाओं में मैस्कुलाइन एनर्जी स्ट्रांग होती है, फेमिनाइन कम होती है, वो गो गेटर्स होती है। कुछ पुरुषों में फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग होती है, मैस्कुलाइन कम होती है, वो थोड़े विशी वॉशी, गुड, हैप्पी फुल लकी, सबको साथ रखने वाले होते हैं। क्योंकि फेमिनाइन इज जॉइनिंग, फेमिनाइन इज हार्मोनाइजिंग, फेमिनाइन इज फॉरगिविंग, फेमिनाइन इज गिविंग, फेमिनाइन इज सर्विंग, मैस्कुलाइन इज डोमिनेंस, मैस्कुलाइन इज कंट्रोल, मैस्कुलाइन इज गो गेटिंग। तो ये एनर्जीज की बात है, जेंडर्स की नहीं। मैं आईबीपी के माध्यम से ये जेंडर इश्यू को एड्रेस करना चाहता हूं। स्टॉप दिस ब्लडी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लुक एट इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज। इफ अ वुमन हैज अ प्रोमिनेंट मैस्कुलाइन एनर्जी, व्हाई डू वी नॉट सी women CEOs that many in this country? Why not? If the energy is there, they deserve it. Even if a man is qualified, doesn't matter. If she has the qualification, she must get it. तो ये जो एनर्जी हमारे आश्रम में भी पुरुषों में है, तो वो रिश्तों के डायनामिक्स तो समझ ही जाते हैं उसमें से कैसे हैंडल कर रहे हैं। दूसरा, मैडम 30 साल से कपल्स के ब्रेकअप्स हैंडल कर रहा हूं मैं, शादीशुदा लोगों की परेशानियों के बाद। कई बार लोग मुझसे आके कहते हैं, गुरुजी शादीशुदा हूं, बहुत परेशान हूं, कुछ सोल्यूशन है? मैं कहता हूं, अरे पगले, सोल्यूशन होता तो मैं साधु क्यों बनता? जस्ट जोकिंग। तो कहने का मतलब यह है कि 30 साल से अगर हर नुएंस सुना है, हर रिश्ते का नुएंस सुना है, लव के रिश्तों के नुएंस सुने हैं, उसका अनुभव है। तीसरा, इन विषयों पर लिखी हुई किताबें भी पढ़ते हैं। और चौथा, गीता, महाभारत, रामायण जैसे एपिक लिटरेचर्स है जिनमें ये सारे सूत्र हैं। तो इन सब को मिलके बनता है अनुभव, जिससे मार्गदर्शन करता हूं। और रही बात क्रिटिसिज्म की, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कहने वालों को कहने दो, हम अपना काम करते रहेंगे। और अगर उस काम से कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो क्रिटिसिज्म आए तो भी दिक्कत नहीं, काम से कुछ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो क्रिटिसिज्म उनका सर माथे पर जरूर बदलेंगे, जरूर काम करेंगे उस क्रिटिसिज्म। बहुत ही सुंदर। आपकी बातों को सुनकर मुझे वो गीत के बोल याद आ गए, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हम यहाँ मुंबई में मौजूद हैं और मुझे अच्छे से याद है, आपके बॉलीवुड में बड़े सारे दोस्त हैं। तो किसी ने कहा नहीं आप इतना अच्छा गाना गाते हैं,
आप गुड लुकिंग हैं, इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, तो हजारों की तादाद में लोगों को आप हैंडल करते हैं, तो आ जाइए एक्टिंग की दुनिया में, वहां पर अपने आप को आजमाएं। रही बात गाने की, पता नहीं मैं अच्छा गाता हूं कि नहीं, मीठा गाता हूं कि नहीं, ये तो लोग बता थोड़ा देंगे। गा ही लेता हूं थोड़ा, लेकिन अच्छा गाता हूं कि नहीं पता नहीं। रही बात गुड लुकिंग की, गुड लुकिंग पता नहीं मैं कितना गुड लुकिंग हूं, और मीठी मीठी बातें थोड़ी कोशिश कर लेता हूं बातें करने की। एक्टिंग करने की जो एक्टिंग का जो स्कोप है बॉलीवुड में, हाँ, 2-3 प्रपोजल्स है जी, बिल्कुल प्रपोजल्स आए हैं। तो आप जाएंगे? जी नहीं क्योंकि मेरे लिए जो मैं एक्टिंग कर रहा हूं, मेरा जो बोलने का तरीका है वही एक ड्रामेटिक नैरेटिव है, तो आई वुड लव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ। एट द सेम टाइम ये कहना कि कुछ भी लाइन ऑन रॉक है, ये गलत है। वक्त और समय कैसे दिशा बदलता है, कब कैसे कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी, और कैसे हम समाज में योगदान कैसे दे सकते हैं। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए बॉलीवुड में भी जहां योगदान की बात आए, तो रिकंसिडर करो या नहीं पता नहीं, लेकिन ये कहना कि हमेशा के लिए कुछ ऐसा ही रहेगा, दैट्स इम्प्यूडेंस आई फील। इसलिए नदी की तरह होना चाहिए, बहते रहना चाहिए, जैसी नदी जिस दिशा में जाए ले जाए, बहते बहते बस योगदान करते रहे। मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस देखे हैं, आपके इंटरव्यू वाले, खासतौर से जब सवाल जवाब हो रहे होते हैं तो कई महिलाओं की ओर से इस तरह की भावनाएं आपको लेकर व्यक्त की गई हैं। उन वीडियोस में हमने देखा, चाहे देश के भीतर हो चाहे विदेशों में जितने भी आपके कार्यक्रम होते हैं। अब मैं आ जाती हूँ उस सवाल पर। देखिए, सफलता आमतौर पर कहा जाता है 2 तरह की होती हैं, या आलोचना की खासतौर से मैं बात करूं कि एक आलोचना जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, और दूसरी आलोचना जो बार बार दिमाग में हिट करती है और आज हम जहां पर खड़े हैं उससे भी हमें पीछे छोड़ देती है। वो हमें बताती है कि हमारे भीतर कुछ है ही नहीं, हम तो समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते। तो इसमें फर्क हम कैसे करें? कौन सी आलोचना ऐसी है जो समाज के एक वर्ग की ओर से की जा रही है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, और वो कौन सी आलोचना होती है हम जहां पर खड़े हैं वो उससे हमें पीछे खींच देती है और हमारे मनोबल को डाउन करती है? दोनों में अंतर कैसे करें? जी आज ही सवेरे मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, यू डू गुड दे विल से समथिंग, यू डू बैड दे विल से समथिंग, डू यू एंड लेट देम से, डू व्हाट यू फील एंड लेट देम से। आलोचना दोनों प्रकार की होती है, कुछ कंस्ट्रक्टिव जो आपको आगे बढ़ाए, कुछ डिस्ट्रक्टिव जो आपको पीछे खींचे। तो कैसे पता करें इसमें डिफरेंस क्या है? मुझे लगता है कि कई बार ना हम अपने मन में बहुत ही ज्यादा विश्वास रख लेते हैं, क्योंकि कई बार हम कंस्ट्रक्टिव को डिस्ट्रक्टिव समझ बैठते हैं और कई बार डिस्ट्रक्टिव को कंस्ट्रक्टिव समझने बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको अपने मन में विश्वास रखना चाहिए, हमको खुद में विश्वास रखना चाहिए। सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर्स, बट नॉट टू सच एन एक्सटेंट दैट बिकम्स सेल्फ सैबोटाजिंग। और इसीलिए मेंटोरशिप, गाइडेंस, वल्नरेबिलिटी बहुत जरूरी है कि हम किसी के पास जो हमारे वेल विशर्स हो, जो अनुभवी हो, उनसे जाके अपने मन की बातें करें कि हमें ऐसा लग रहा है लेकिन थोड़ा डाउट है। अगर पूरे विश्वास से लग रहा है तो करिए, गलती भी हो जाए तो सुधार लेंगे, लेकिन हमको यहां कोई थोड़ा एक डाउट है तो मार्गदर्शन लेने में क्या है जी। लेकिन हम क्या है ना, वल्नरेबल नहीं होना चाहते, और इसीलिए ऐसी परिस्थिति में थोड़ा वल्नरेबल होके अगर मार्गदर्शन ले तो कभी कभी पता लगे कि जो मैं डिस्ट्रक्टिव सोच रहा था वो एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव था, और जो मैं कंस्ट्रक्टिव सोच रहा था वो मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव था। लेकिन यहां पर आ जाती है भरोसे की कमी कि हम किस पे भरोसा करें जो हमको इस तरह से गाइड करे। जी, पहचान कैसे करें फिर उस व्यक्ति का? जी, भरोसा ना एक दिन की बात नहीं है। जैसे कहते हैं ना, मिलिट्री में पहले एक स्लोगन हुआ करता था, ऐसा तो नहीं होता ना कि आज भर्ती और कल चक्रवर्ती, रात को भर्ती हुआ और कल चक्रवर्ती हो गया, बड़े चक्र लग गए। भर्ती होने और चक्रवर्ती होने में ना कई युद्ध लड़ने पड़ते हैं। जब वो युद्ध लड़ते हैं सालों साल, तब लगते हैं वो मेडल्स और चक्र यहां पर। तो हमारे रिश्तों में भी लोगों के साथ भी भर्ती होने का मतलब है एक्वेंटेंसेस और कनेक्शन हो जाना, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, कई बैटल्स लड़नी पड़ती है, तब पता लगता है दूध का दूध और पानी का पानी,
कि कौन लोग मेरे साथ बस यूज करने के लिए आए हैं, कौन लोग मेरे साथ इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, और कौन लोग हैं जो सच में मेरे वेल विशर्स है, जो मुझे मदद करने के लिए आए हैं। देखिए, जैसे कहते हैं ना, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड द डोर शैल ओपन। अगर हम सीख ही नहीं करेंगे तो वो लोग मिलेंगे ही नहीं। और इसलिए हमारी इस सफर में, इस जर्नी में, इस यात्रा में कुछ लोग होंगे जो हमको शिक्षा देकर पीछे छूट जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो हमको अनुभव छोड़ देकर साथ में चलते रहेंगे, और कुछ लोग होंगे जो हमारे इतने खास हो जाए, विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी हो जाए कि उनके साथ हम एक्चुअली जो है डीप रिश्ता बना पाए। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है। समय हमें इजाजत दे रहा है, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी आपकी जिंदगी से वो कौन से 3 बड़े सबक हैं जो आपको सुनने वाले सीख सकते हैं, और आपकी जिंदगी में अभी कौन कौन से वो मुकाम पाने बाकी हैं जिसका अभी भी आपको इंतजार है? जी, पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे खुद की लाइफ में दुनिया की बात सुनते सुनते अपने दिल की बात सुनना छोड़िए मत। हम इतनी दुनिया की सुन रहे हैं कि दिल की नहीं कर रहे। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि अगर आज माइंड में कुछ है, किसी के बारे में कुछ है, रिकंसाइल कीजिए, मैसेज कर दीजिए, एक फोन कॉल कर दीजिए, कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा ईगो को लेट गो करने से। और तीसरी बात कहना चाहूंगा कि दुनिया की इस रेस में भागते 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 ये मत भूलिए कि जो आप ढूंढ रहे हैं वो भीतर है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में, लेकिन मैं का ही शोर है। और इसलिए जो आप ढूंढ रहे हैं वो भीतर है। और रही बात वो क्या मुकाम है, कौन सा मुकाम है जो मैं पाना चाहता हूं या जो पाना बाकी है, देखिए, एक बच्चा था और वो बच्चा, स्टारफिश पड़ी हुई थी बहुत सारी, लाखों बीच पर। वो बच्चा एक एक स्टारफिश उठाकर समंदर में डाल रहा था जाकर। एक आदमी देख रहा था, 15 मिनट से आया बच्चे के पास, बच्चे से पूछा, बेटा यहाँ हजारों लाखों स्टारफिश पड़ी है, तुम बचाना चाह रहे हो, 15 मिनट से देख रहा हूं, तुमने बस 10 ही स्टारफिश तो बचाया अभी तक। डू यू थिंक यू कैन मेक अ डिफरेंस सन? बच्चे ने जवाब नहीं दिया। उसने एक और स्टारफिश उठाई, पानी में गया, उस स्टारफिश को पानी में डाला, फिर उस आदमी के पास आकर कहा, इट मेड अ डिफरेंस टू दैट वन। हजारों को जीवन में बदलाव लाने की जरूरत नहीं, उस एक के जीवन में बदलाव आ जाए ना। मेरे जिंदगी का मकसद, मकाम बस ये है। मैं ना कुछ पाना चाहता हूं, ना कुछ हासिल करना चाहता हूं, ना मेरा इससे बड़ा कोई और मकसद है। जो कह रहा हूं उससे लाखों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। एक इंसान का रिश्ता बच जाए, एक इंसान सुइसाइड नहीं करे, एक इंसान का सेल्फ बिलीफ, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, एक इंसान ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि मुझ में भी काबिलियत है, वो एक इंसान अगर बदल जाए ना, बस ये सुकून है। बहुत सुंदर आपने बात कही है। आपने सुसाइड शब्द का प्रयोग किया। मुझे हाल ही में हमने बहुत सारी इस तरह की खबरें हाल के दिनों में पढ़ी थी, जब पति पत्नी के बीच अनबन होने या जो हम सफलता चाहते हैं उसमें सफल नहीं होने के बाद सुसाइड के केस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। जब भी किसी के जहन में इस तरह की बातें आती हैं, तत्काल उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि अपने आप को, क्योंकि ये क्षणिक होता है, दिमाग में आया और फिर उसके बाद सुसाइड कर ली, इसको कैसे रोकने के लिए क्या सलाह देंगे आप? बहुत सारी बातें, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, जब किसी के जहन में ये बात आती है तब जहन में दूसरा कुछ नहीं आता। याद रखिएगा, उनके लिए जीना मरने से ज्यादा मुश्किल हो गया है, इसलिए मरना चाह रहे हैं। जब जीना इतना मुश्किल हो जाए कि यही विकल्प रह जाए, तब तो वो इस निर्णय पे आए हैं जी। तो जब ये बातें चलती है तब जहन में कुछ नहीं आता। इसलिए ये मैं कहना चाहूंगा सारे लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जो कॉलीग्स से, समाज से, कि लोगों को अकेला महसूस होने मत दो। वो तो सोच नहीं पाएंगे उस मोमेंट पे, लेकिन हम अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहे रिश्तों में, हम अगर लोगों के साथ काइंडनेस से,
और एक सेंसिटिविटी से पेश आते रहे. सुइसाइड इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल, सुइसाइड इज अ सिस्टमल चेंज, इज अ सोशल चेंज. कि जब सेंसिटिविटी आएगी, जब काइंडनेस आएगा, जब प्रेशर को हैंडल करने की एक डिवाइड करके हम करने की क्षमता ढूंढने लगेंगे, तब हो सकता है कि उसके जहन में आए कि वो है जो समझ पाएगा, चला जाता हूं. लेकिन उसके जहन में तो आज समझने वाला भी कोई नहीं. तो सबसे कहना चाह रहा हूं, इन्वेस्ट करते रहिए. द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट स्टॉक मार्केट, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द लाइव्स ऑफ पीपल, because you never know that one person you invested in at the last minute just before tying the noose might suddenly think of you and call you. Right. Please help. बहुत सुंदर बातें आपने कही हैं, बहुत बहुत प्यारी बातें. और आप ही की बातों में से दो लाइनें मैंने निकाली. आपने कहा कि आपको टोकना चाहूंगी, बट आई एम अफ्रेड वी टोटली आउट ऑफ टाइम ऑन दिस वन. तो आपका धन्यवाद फॉर लीडिंग दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर विजडम, फॉर योर गाइडेंस एंड योर ह्यूमर एज वेल. आप ह्यूमर के थ्रू बहुत चीजें हमें सिखा जाते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट ध्रुवा मुखर्जी, डायरेक्टर एबीपी नेटवर्क, टू जॉइन अस ऑन स्टेज, एंड रजनीश आहूजा, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट न्यूज एंड प्रोडक्शन, एबीपी न्यूज, to present Shri Gaur Gopal Das ji with a token of our appreciation. Thank you for your time, sir. Thank you for inspiring us. We can do a louder round of applause. This is truly someone who's given us multiple life lessons in just a span of 40-45 minutes, and surely we can listen to him endlessly, much to learn, and hopefully he will be back again on the Ideas of India platform soon enough again. Thank you so much, and thank you, Chitra.